آج 12 ربیع الاول ہفتہ کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ خدارا یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اسے ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 ربیع الاول ہفتہ کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ 3 کام ضرور کر لینا، پھر 3 منٹ بعد معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ آج یہ 3 کام کرتے ہی آپ کی ہر حاجت ہر مراد پوری ہوگی۔ اگر کوئی بندہ یہ 3 کام صبح کرتا ہے تو شام تک ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر شام کو کرتا ہے تو صبح تک ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی فقیر ہے، تنگ دست ہے، بڑی سے بڑی بیماری، بڑی سے بڑی پریشانی، غربت ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، جو شخص بھی کسی بھی وجہ سے آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، مجھے آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آج 12 ربیع الاول ہفتہ کے دن صرف یہ 3 کام کر کے دیکھ لیں۔ یہ 3 کام کرتے ساتھ ہی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو لاپرواہی میں گزار دیا تو پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا کہ کاش ہم نے 12 ربیع الاول کے دن یہ 3 کام کر لیے ہوتے تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں اربوں کے مالک ہوتے۔ لیکن جو وقت گزر گیا سو گیا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، ان 3 کاموں کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اور پھر یہ 3 کام کرنے ہیں۔ آج 12 ربیع الاول ہفتہ کا دن ہے، اور یہ مبارک اور قبولیت والا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آج کا دن رب سے مانگنے کا دن ہے، آج کا دن رب سے اپنی حاجت پوری کروانے کا دن ہے۔ آج کا یہ خاص دن نصیب والوں کو ملتا ہے۔ آج کے دن اگر آپ یہ 3 کام کر لیتے ہیں، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لیتے ہیں، تو آج یہ اعمال پڑھ کر آپ رب کریم سے جو مانگیں گے مل کر رہے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کا دن ہے، آج ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آج کے دن کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ آج کوئی تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، قرض دار ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات اچھی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آج کسی کی بھی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، کیونکہ آج خوش قسمت بندہ ہی یہ 3 کام کرے گا، یہ 3 وظائف پڑھے گا جو کہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، جو ہر کسی کو زبانی آتے ہیں۔ آپ نے یہ وظائف پہلے بھی بہت بار پڑھے ہوں گے، لیکن آج 12 ربیع الاول ہفتہ کے دن کے یہ خاص الخاص وظائف جس ترتیب جس تعداد میں بتاؤں گا، آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے ہیں۔ اگر آپ آج چند منٹ نکال کر یہ وظائف نہیں پڑھ سکتے تو آپ پھر کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اس دن آپ نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، کوئی بھی اعمال پڑھتے ہیں، آپ کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، اس سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آج یہ خاص الخاص 3 وظائف لازمی پڑھیے گا۔ آپ جو بھی پڑھتے ہیں ان کا آپ کو فائدہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن آج جو شخص یہ 3 چھوٹے چھوٹے وظائف بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، جاپان سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 12 ربیع الاول ہفتے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ 3 کام لازمی کر لینے ہیں۔ آپ کے پاس پوری رات اور پورا دن موجود ہے، آپ میں سے جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے وظائف ضرور پڑھنے ہیں، جو کہ چند منٹ میں پڑھ لیے جائیں گے۔ اگر آپ آج چند منٹ نکال کر رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ نہیں سکتے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ یہ چند منٹ کے اعمال سے آپ ساری زندگی کی تمام پریشانیوں اور مشکلات سے نجات پالیں گے۔ کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، کئی سالوں سے اٹکے ہوئے کام جو آپ نے محنت و مشقت کی، لوگوں کی منت سماجت کی، بڑی بڑی سفارشیں کروائیں، پھر بھی پورے نہ ہوئے، تو آج 12 ربیع الاول ہفتہ کے دن یہ 3 اعمال، یہ 3 چھوٹے چھوٹے وظائف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ میرا رب فرماتا ہے تو مانگ اس دن، میں تو مانگ مانگ کر تھک جائے گا، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو کہ میرے رب کی ایک کن کا محتاج ہے۔ آج مانگنے والے پر نظر کرم ہو جائے گی۔ آج بیمار ہو شفا کے لیے پڑھ لو، تو آج تنگ دست ہو، بھکاری ہو، فقیر ہو، غربت کے مارے ہوئے ہو، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہو، بے شمار وظائف تسبیحات اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہو، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لو۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اعمال پڑھتے دوران ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی رب کعبہ کی خاص رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جس کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، آج آزما کر دیکھ لو۔ آج 12 ربیع الاول ہفتے کا دن ہے، آج کا دن سال میں ایک بار آتا ہے، اور یہ دن جس کو نصیب ہو جاتا ہے، اور جو بندہ اس دن میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لیتا ہے،
रब को राज़ी कर लेता है। और जिस बंदे से रब और रब का महबूब राज़ी हो जाए उसे दुनिया की कोई भी ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो जो नौकरी, वो रिस्क, वो दौलत जिसके लिए आप कई सालों से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, आज ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ने से आपकी गैब से मदद हो जाएगी, हर हाजत पूरी हो जाएगी। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाज़रीन आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है? आज 12 रबीउल अव्वल हफ्ता के दिन आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या नमाज वाला दरूद दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं ये आपकी मर्ज़ी है। दरूद पाक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफ़हूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। आप में से जो कोई जो कुछ भी मांगना चाहता है मांग ले। आज 12 रबीउल अव्वल हफ्ते का मुबारक दिन है। आज कबूलियत की घड़ियां हैं। आज तकदीर और नसीब के मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। आज रोज़गार के लिए पढ़ लो, बे औलाद हो औलाद के लिए पढ़ लो, तंग दस्त हो रोज़गार के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हो उसके लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो, मनपसंद शादी मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो। जिसकी जो हाजत है, जो मकसद है, जो ख्वाहिश है आज मांग लेना। आज अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हाजत नामुमकिन है, आपको लगता है कि ये किसी सूरत भी पूरी हो नहीं सकती, तो आपने सिर्फ अपने मकसद की नीयत करनी है। अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। याद रखिएगा कि तावुज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं, और जिस काम के शुरू में तावुज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने मकसद की नीयत कर ली, तावुज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब 12 रबीउल अव्वल हफ्ता के दिन पहले नंबर पर जो काम आपने करना है, जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, वह वजीफ़ा इस्तिग़फ़ार का वजीफ़ा है। आज आपने सबसे पहले रब करीम के सामने हाथ उठाकर निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी है, क्योंकि जब तक आप रब के हुजूर तौबा नहीं करेंगे तो अमल का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम तस्बीहात तो पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने गुनाहों की तौबा नहीं करते, जिसकी वजह से वज़ाइफ ज़ाया हो जाते हैं। हम इंसान हैं, जाने अनजाने में कोई ना कोई हमसे ऐसे गुनाह ज़रूर हो जाते हैं जिसकी वजह से हम अल्लाह की पकड़ में आ जाते हैं। इस पर फितन दूर में कोशिश किया करें कि आप रोज़ाना कम से कम 100 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ें। जितना ज़्यादा आप इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे आप अल्लाह पाक के उतने ही ज़्यादा करीब होते चले जाएंगे। आप रोज़ाना इस्तिग़फ़ार करते रहा करें। वो रब बड़ा रहमान है, बड़ा करीम है, वो आपके तमाम गुनाहों को बख्श देगा। इस्तिग़फ़ार आपने कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है और कौन सा पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह 1 बार हो गया। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह 2 बार हो गया। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह 3 बार हो गया। नाज़रीन, इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 313 बार पढ़ना है। याद रखिएगा कि जो बंदा सच्चे दिल से अपने गुनाहों की तौबा कर लेता है, अल्लाह उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। फिर वो ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी अभी पैदा हुआ हो। फिर अल्लाह उसके माल में, जान में, इज़्ज़त, आबरू में बरकतें, वुसअतें अता फरमाता है। फिर उसे अल्लाह से मांगना नहीं पड़ता, बिन मांगे हर शय मिल जाती है। जब आप पहले नंबर पर अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह को 313 बार पढ़ लें, तो इसके बाद दूसरे नंबर पर आपने कौन सा काम करना है, कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। ये वजीफ़ा भी एक ख़ास इसमें आज़म है, जो रब करीम की एक ऐसी सिफ़त है कि जिसको पढ़ते साथ ही बंद रास्ते खुल जाते हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं, मुश्किलात हट जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं।
आपने या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। या मुसब्बिबुल असबाब का मतलब क्या है? गैब से असबाब बनाने वाली ज़ात, गैब से रास्ते बनाने वाली ज़ात, गैब से मदद भेजने वाली ज़ात। अगर तो आप गैबी फरिश्तों की मदद चाहते हो तो आपने दूसरे नंबर पर या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। जब कोई बंदा या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ता है तो रब की ज़ात अपने नाम या मुसब्बिबुल असबाब के तुफैल इतने रास्ते बनाती है कि बिगड़े काम संवर जाते हैं। फिर आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबियां मुक़द्दर हो जाती हैं। आप जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाती है। वो जो सारी उम्र ना मिल सका आज या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ते ही मिल जाएगा। आज तक तो आपने सिर्फ सुना होगा कि रब की ज़ात जब देने पर आती है तो छप्पड़ फाड़ कर देती है। अगर आपको किसी मकसद में कामयाबी नहीं मिल रही तो आप अपनी तमाम मुश्किलात परेशानियों से निकलने के लिए या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ कर देखें। आपने या मुसब्बिबुल असबाब को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या मुसब्बिबुल असबाब एक बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब दो बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। तवज्जो से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, सुकून से बैठकर पढ़िएगा, इधर उधर नज़र मत दौड़ाइएगा। आपकी नज़रें, पूरा ध्यान, आपकी तवज्जो वो वजीफ़े की तरफ ही मरकूज़ होनी चाहिए। जब आप दूसरे नंबर पर 11 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ लें तो इसके बाद फौरी तौर पर तीसरे नंबर पर जो काम आपने करना है, जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, वो वजीफ़ा एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है जिस दौलत का ख़जाना कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज कहा जाता है। तीसरे नंबर पर आपने सूरह कौसर पढ़नी है। आपने सूरह कौसर को इस मोहब्बत के साथ पढ़ना है, इस यकीन कामिल के साथ पढ़ना है कि जब जब आपकी ज़ुबान से सूरह कौसर निकल रही हो आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब करीम से मांगते चले जाएं। सूरह कौसर वो सूरत है, सूरह कौसर पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। यह है तो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत, लेकिन इसके कमालात बहुत ही ज़्यादा हैं। सवाब की नीयत से सूरह कौसर की तिलावत समात फरमा लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। आपने सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। 7 बार पढ़ने से फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर रहमतें, बरकतें लेकर आ जाएंगे। अगर कोई बंदा कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी हाजात पूरी नहीं होती, मुझे वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, तो आज सिर्फ 7 बार सूरह कौसर को पढ़ कर देख लो। इस ख़ास वजीफ़े को एक बार पढ़ कर देख लो और फिर मुझे बताना फ़ायदा मिला या नहीं मिला। अगर आप इन ख़ास अमाल को पढ़ते वक्त अपनी कोई ख़ास 7 हाजात को लेकर बैठोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी साथ के साथ नामुमकिन हाजात को मुमकिन बनाने पर कादिर है। पहले नंबर पर आपने 313 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने 11 बार या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। तीसरे नंबर पर आपने 7 बार सूरह कौसर पढ़नी है। जब आप ये 3 काम कर लें, ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो फौरी तौर पर आपने 3 बार दरूद पाक लाजमी पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब हाथ उठाएं और अल्लाह से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर मांगें। आपने आखिर में जो दुआ मांगनी है वो दुआ सही तरीके से मांगनी है। आप दुआ मांगने के अंदर जल्दबाजी कर जाते हैं। जल्दबाजी करने का नुकसान हमें ही मिलता है। कोशिश करें कि जल्दबाजी ना करें और दुआ का जो तरीका मैं बताने लगा हूं उसी तरीके से ही दुआ करें। आपने दुआ इस तरीके से करनी है कि ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे इन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाने वाले जो मेरी दुआओं की कबूलियत के दरमियान आ जाते हैं, ऐ मेरे मौला मेरे तमाम इन गुनाहों को माफ़ फरमा दे जिसकी वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ पाता। इस तरीके से दुआ करें गोया अल्लाह पाक आपसे बात कर रहे हैं या फिर आप अल्लाह पाक को देख रहे हैं। दुआ हमेशा लंबी किया करें। अपने तमाम दुख, तकालीफ, परेशानियाँ अपने रब को बता दें। ज़रूरी नहीं कि हाथ उठाकर दुआ करें, सजदे में चले जाएँ, सजदे में जाकर दुआ करें। देखें कितनी जल्दी आपका काम बनता है। वो रब तो देने को तैयार बैठा है। वो रब तो चाहता है कि इंसान मेरे घर आ, मेरे घर में आकर इबादत कर और तौबा इस्तिगफार कर, फिर तू जो मांगेगा तुझे दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास आना पड़ेगा, मुझे मनाना पड़ेगा, फिर तो जो तू मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा। आइए आज के इस बाबरकत और कबूलियत वाले दिन में मिलकर एक मरतबा अल्लाह पाक के हुजूर दुआ कर लेते हैं। ये बड़ी ही बरकतों वाली, सआदतों वाली घड़ियां हैं। क्या पता किसी की आमीन से हमारी दुआएं कबूल हो जाएं। ऐ हमारे मालिक व मौला, ऐ दिलों को करार देने वाली ज़ात, ऐ भूखों को खाना देने वाली ज़ात, ऐ परेशान हालों को परेशानियां दूर फरमाने वाली ज़ात, हम सब मिलकर तेरी बारगाह में फरियाद करते हैं। जितने भी दोस्त अहबाब हमें सुन रहे हैं, ऐ अल्लाह पाक इनकी तमाम जायज़ हाजतें पूरी फरमा दे। इनके दुख, गम, कर्जदारियाँ, परेशानियाँ, मुसीबतें दूर फरमा दे। ऐ हमारे मालिक व मौला, दुनिया भर में जितने भी मोमिनीन मोमिनात परेशान हैं, मौला इन सब की परेशानियाँ दूर फरमा दे। जितने भी मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, मौला उनको सेहत कामिला आजरा मुस्तमिर्रा अता फरमा। ऐसी सेहत अता फरमा कि बीमारी बाकी ना रहे। ऐ मालिक व मौला, जितने भी दोस्त अहबाब
سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کی کیا کیا پریشانیاں ہیں، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا سب پر کرم فرما دے، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے، اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمانا، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔